صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ مسائل کا سلسلہ ہمارا الحمدللہ چل رہا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں کچھ مسائل ہمارے سامنے آئے تھے استنجے کے تعلق سے، اور آخر کا جو ویڈیو تھا اس ویڈیو کے اندر کچھ چیزیں جو ہیں ضروری تھیں استنجا کے موقع پر، اس کے تعلق سے، ان چیزوں کے تعلق سے، ان چیزوں کو عمل میں لانا، اسی کے مطابق جو ہے استنجا کرنا، طہارت حاصل کرنا، اس کے تعلق سے کچھ مفید باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کے سامنے استنجے کے وقت کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہیں، ان چیزوں کے تعلق سے میں بات کروں گا۔ استنجا جو ہے، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، یہ انسانی فطرت ہے، انسانی تقاضا ہے۔ اب اس کو جو ہے، اس تقاضے کو بھی شریعت کے مطابق پورا کرنا ہے، اس فطری چیز کو بھی شریعت کے مطابق مکمل کرنا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کچھ چیزیں نہیں کرنے کی ہیں، مکروہ ہیں، ان چیزوں سے بچنا بہت ہی ضروری ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے، اور خود میں جو ہے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوں کہ بعض جگہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، استنجے کے لیے جاتے ہیں، پیشاب ہو، پاخانہ ہو، اندر جا کر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں موبائل سے، یا پھر جو ہے ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ دونوں جو ہے پیشاب کے لیے گئے، اور دو پیشاب خانے میں جو ہے جا کر ضرورت پوری کر رہے ہیں، اور دونوں جو ہیں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ تو ایسی کچھ چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں مکروہ ہیں۔ تو ان چیزوں کے تعلق سے آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استنجا جو ہے، ابھی میں نے کہا کہ انسانی ضرورت ہے، فطری چیز ہے، پیشاب ہو یا پاخانہ ہو، اس کو جو ہے شریعت کے مطابق پورا کرنا ہے، اور ہر چیز میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ اس عمل کو ہمارے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مکمل کیا۔ یہ چیز ہمارے لیے دلیل ہے، سنت۔ ہر کام ہمارا مسنون طریقے سے ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں چیزوں کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو اس لیے وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا کلام ہے، اور ایک حدیث رسول ہے، سنت رسول ہے۔ تو ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، کتنا ہی چھوٹا کام کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑی چیز اور بڑا کام کیوں نہ ہو۔ تو پیشاب پاخانہ جو ہے یہ انسانی ضرورت ہے، فطری چیز ہے، تو اس کو بھی جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کرنا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اسی کے اوپر ہم جو ہے بات کریں گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ بھئی استنجا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، چھوٹا استنجا یعنی پیشاب ہے، کھڑے کھڑے کرنا سنت کے جو ہے بالکل خلاف ہے۔ کھڑے کھڑے جو ہے
نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت ہے، ایسی پریشانی ہے کہ بھئی کھڑے بیٹھ کر جو ہے پیشاب نہیں کر سکتے، تو کچھ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں پر جو ہے ہم کھڑے ہو کر جو ہے اپنی ضرورت کو پوری کر سکیں گے، لیکن عام حالات میں کھڑے کھڑے پیشاب نہیں کرنا چاہیے. پیشاب اگر کھڑے کھڑے بلا ضرورت ہم کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی نبی کا عمل ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، نبی کا عمل ہمارے لیے، نبی کی سنت ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں. ہم جو ہے عمل کے ذریعے سے اس بات کو ظاہر کر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، کھڑے کھڑے جو ہے اپنی ضرورت کو پوری نہ کریں. پیشاب کھڑے کھڑے نہیں کرنا چاہیے. اب دوسری چیز کیا ہے، پیشاب ہو یا پخانہ ہو، جب ضرورت پڑ گئی آدمی کو، تقاضا ہو گیا پیشاب کا ہو یا جو ہے پخانے کا ہو، تب آدمی کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جو ہے اپنا سطر کھولے، اپنا ازار جو ہے، جو بھی پینٹ ہو، لنگی ہو، پاجامہ ہو یا کوئی اور ہو، اس کو کھولنا ہی پڑتا ہے. اس کو کھول کر ہی ضرورت پوری ہوتی ہے. تو اب وہ کھولنے کا طریقہ بھی شریعت کے اندر بتا دیا گیا کہ کھڑے کھڑے آدمی جو ہے اپنا پورا سطر نہ کھولے. یہ بھی سنت کے بالکل خلاف ہے. حدیث میں بات آتی ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ضرورت کے لیے جاتے، جیسے جیسے زمین سے قریب ہوتے جاتے، ویسا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سطر کھولتے تھے. تو یہ ایک سنت ہے کہ بھئی ضرورت کے لیے گئے، اب جاتے ہی جو ہے پورا کپڑا اتار رہے ہیں، ننگے ہو رہے ہیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. تو جیسے جیسے ہم زمین سے قریب ہوتے جائیں گے، تھوڑا تھوڑا کپڑا جو ہے ہٹاتے جائیں گے. اور ضرورت پوری کرنا ہے تو کپڑا جتنی ضرورت ہے اتنا ہی اتارنا ہے. ضرورت سے زائد کپڑا اتارنا یہ بھی سنت کے خلاف. ایک سنت تو یہ ہے کہ بھی زمین سے قریب ہوتے 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 دھیرے 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 کپڑے کو اتارنا. اب پورا زمین کے قریب ہو گئے، بیٹھ گئے، اب جو ہے کپڑا اتار رہے ہیں اور بیٹھ کر پورا کپڑا اتار رہے ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف. اس کو بھی نہیں کرنا چاہیے. جتنا ضرورت ہے اور جتنا کپڑا کھولنے میں ہماری ضرورت آرام سے پوری ہوتی ہے، اتنا ہی کپڑا بدن سے الگ کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب دوسری چیز کیا ہے، بیت الخلاء میں جائیں گے، پیشاب خانے میں ہم جائیں گے، تو پیشاب خانے میں بیٹھے بیٹھے پیشاب کر رہے ہیں یا پخانہ کر رہے ہیں بیت الخلاء میں، تو ضرورت پوری کرتے کرتے گفتگو کرنا، باتیں کرنا، یہ بھی منع ہے. ابھی میں نے کہا کہ آج کل جو ہے لوگ اس کے اوپر عام طور سے جو ہے اس غلطی میں مبتلا ہیں. اور بعض لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں آتے ہیں اور نماز کے لیے آتے ہیں، اب ان کو جو ہے فطری تقاضا ہے، گئے اندر، جانے کے بعد جو ہے فون آ گیا تو اندر بیٹھ کر ہی فون کر رہے ہیں. کوئی تو سلام کر رہا ہے، کوئی تو اللہ کا نام لے رہا ہے، کوئی خیر خیریت پوچھ رہا ہے، اس کے جواب میں الحمدللہ بول رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں مکروہ ہیں. اور اللہ کے کلام، اللہ کے نام کی ایک عظمت ہے، اللہ کے نام کی ایک قدر ہے. اور اللہ کا نام بالکل پاک ہے. جس طرح اللہ کی ذات گندگیوں سے اور عیبوں سے پاک ہے، اللہ کا نام بھی، اللہ کا کلام بھی بالکل عیبوں سے، گندگیوں سے، گندی جگہوں سے بالکل پاک ہے. تو شریعت کے اندر اعتدال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اب اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ کہ اعتدال اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی جس چیز کا جو مقام ہو اس چیز کو وہ مقام دیا جائے، نہ تو اس چیز کو اس مقام سے نیچے گرائے، نہ تو اس چیز کو اس مقام سے اوپر اٹھائے. جو مقام اس کا ہے اس مقام پر رکھنا، اسی کو اعتدال کہا جاتا ہے. اور بیت الخلاء جو ہے بیت الخلاء میں جا کر بیت الخلاء جو ہے تقاضا پورا ہو رہا ہے اور ایک طرف جو ہے اللہ کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور سلام دعا بھی ہو رہی ہے، یہ جو ہے بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کے نام کے خلاف، اللہ کے نام کے ادب کے خلاف ہے، گستاخی ہے اللہ کے نام سے. تو اس لیے
ना तो वहां बैठकर बातें करना सही है और ना ही वहां बैठकर सलाम करना, सलाम का जवाब देना, खैर खैरियत पूछना, अल्लाह का नाम लेना सही है। हाँ, यह हो सकता है, इससे पहले मैंने कहा कि जिक्र ज़बानी नहीं कर सकते लेकिन जिक्र कल्बी कर सकते हैं, दिल से अल्लाह को याद कर सकते हैं। और ये दिल से अल्लाह को याद करना आदमी अपनी जिंदगी में किसी भी मौके पर इससे छुटकारा पा नहीं सकता। कि आदमी जो है दिल को बिल्कुल जो है अल्लाह की याद से गाफिल कर दे। अगर जब इंसान का दिल अल्लाह की याद से गाफिल हो गया तो शैतान क्या करेगा, फौरन उस दिल पर हमला करेगा। तो इसलिए अल्लाह को दिल से याद करना है, जिक्र कल्बी होते रहना है, लेकिन जिक्र जबान से जिक्र अल्लाह का नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, बैतुल खला में रहते हुए जबान से, अभी इसी चीज में ये चीज भी आ गई कि बैतुल खला में रहते हुए अल्लाह का नाम लेना अपनी जबान से, ये भी बिल्कुल मना है, बात आ गई। अब चौथी चीज, अपनी शर्मगाह को बिला जरूरत देखना। पेशाब के लिए गए या पाखाने के लिए गए, सदर खोले, कपड़ा निकाले, अब बैठकर जो है वहां जो है अपनी शर्मगाह के ऊपर निगाह जमाए घूर रहा है, ये अच्छी बात नहीं। और बाज़े अकाबिर फरमाते हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी बैतुल खला में जाकर अपनी शर्मगाह को गौर से देखता रहता है तो उसे दो नुकसान होते हैं। एक, उसकी निगाह कमजोर होती है, और दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर शहवत बढ़ जाती है, गुनाह के इरादे ज्यादा पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि पेशाब के लिए जाएं या पाखाने के लिए जाएं तो अपनी शर्मगाह को बिला जरूरत कभी भी ना देखें। अब इसके बाद पांचवी चीज, सबीलैन से निकलने वाली नजासत को गौर से देखना। सबीलैन यानी दोनों रास्तों से, चाहे पेशाब के रास्ते से हो या पाखाने के रास्ते से हो, जो चीज भी निकल रही है, पेशाब निकल रहा है, मनी का खतरा निकल रहा है, मजी निकल रही है, मदी निकल रही है, और इसी तरीके से पाखाने के रास्ते से पाखाना निकल रहा है, या फिर जो है और कोई चीज निकल रही है, उन चीजों को जो है गौर से देखना, इससे भी जो है अपनी निगाह जो है कमजोर हो जाती है। और इससे जो है गंदे ख्यालात आते हैं दिलों के अंदर और वसवसा बढ़ जाता है इससे। आजकल जो है बहुत सारे नौजवान इस बात का शिकार, इस चीज का शिकार हो चुके हैं कि वो लोग कहते हैं कि वसवसे बहुत आते हैं और बहुत परेशान हैं हम लोग, नमाज भी सही तरीके से मुकम्मल नहीं होती हमारी, नमाज में खड़े रहते हैं तो गंदे गंदे ख्यालात आते हैं। तो उसकी दो वजह हैं, गंदे ख्यालात आना और वसवसा ज्यादा होना, ये इसकी दो वजह हैं। एक तो यहां आ गई और एक नीचे आ रही है कि इन दो वजहों से जो है इंसान जो है गंदे ख्यालात का आदी हो जाता है। गंदे ख्यालात उसको आते रहते हैं, वसवसा ज्यादा होता है, नफ्स उसके ऊपर जो है पूरा जोर लगाता रहता है, शैतान उसके ऊपर पूरी मेहनत करता रहता है। तो इसलिए बचना जरूरी है। एक चीज, जो भी चीज निकल रही है पेशाब के रास्ते से, पाखाने के रास्ते से, उसके तरफ गौर नहीं करना चाहिए, गौर से नहीं देखना चाहिए। हाँ, कभी कभी जो है मेडिकल टेस्ट के लिए पेशाब जो है टेस्ट के लिए लिया जाता है, इसी तरीके से पाखाने का भी टेस्ट होता है, तो वो अलग चीज है, तिब्बी जरूरत है। वहां जो है शरीयत छूट देती है कि भाई जरूरत के वक्त जो है काम कर सकते हैं, लेकिन बिला जरूरत पेशाब के रास्ते से निकलने वाली चीज को और इसी तरीके से पाखाना के रास्ते से निकलने वाली चीजों को गौर से कभी भी नहीं देखना चाहिए। अब इसके बाद छठी चीज, नजासत की जगह में थूकना। नजासत की जगह में थूकना, भाई पेशाब कर रहे हैं, पैखाना कर रहे हैं और जो है उस जगह जो है हम थूक रहे हैं, ये भी अच्छी चीज नहीं, ये भी मकरूह है। इससे भी जो है हम लोगों को बचने की जरूरत है। थूकने की जगह अलग है, ये जगह अलग है, तो इससे भी बचने की जरूरत है। सातवीं चीज, बैतुल खला में बिला जरूरत खंकारना। इस तरह जो है खकारना बिला जरूरत, ये भी जो है सही नहीं। जब बिला जरूरत खकारना ही सही नहीं है
तो ऊपर के जितने काम है बदरजे औला सही नहीं। क्यों? वजह क्या है? वहां किस लिए गए हैं, किस मकसद से गए हैं? वो मकसद पूरा हो जाए, काम से फारिग हो जाए, जल्दी वहां से निकल जाए। वो वहां बैठकर ये सारी चीजें कर रहे हैं कि भाई अपनी शरंगाह के ऊपर जो है निगाह लगाए बैठे हैं, और जो है गंदगी के ऊपर जो है निगाह लगाए बैठे हैं, खकार रहे हैं, खांस रहे हैं। तो ये चीजें जो है बिल्कुल मुनासिब नहीं। तो इसलिए बैतुल खला में बैठकर बिला जरूरत खंकारने से भी बचना जरूरी है। 8वीं चीज, बैतुल खला में बैठकर बदन के किसी हिस्से से खेलना या फिर कपड़े से खेलना या कोई और चीज, तो ये चीज भी बिल्कुल सही नहीं। चाहे अपने बदन से आदमी खेल रहा हो, चाहे कपड़े से, और इसी तरीके से कोई और चीज। और बहुत सारे लोग तो ये बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों की बीमारी पकड़ी हुई है। जब आदमी पैखाने के लिए जाता है तो अपने साथ मोबाइल लेके जाता है। ये आम आदत होती जा रही है, और आदमी जो है वहां बैठकर आराम के साथ मोबाइल का इस्तेमाल करता है। तो कितनी जो है शर्म की बात है, और कितनी घटिया बात है, और कितनी निकम्मी बात है कि हम जो है वहां अपना कपड़े खोले बैठे जरूरत पूरी कर रहे हैं और एक तरफ जो है हम मोबाइल चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने बदन से ही नहीं खेल सकते, अपने कपड़े से नहीं खेल सकते, तो मोबाइल से हम काम कैसे हमारे लिए सही हो सकता है? तो इसलिए चाहे मोबाइल हो, चाहे अपना कपड़ा हो, चाहे अपना बदन हो, चाहे और कोई चीज हो, उससे बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि उन चीजों को जो है हम इस्तेमाल करें, खेलें। अब इसके बाद 9वीं चीज, क़ज़ाए हाजत के वक्त आसमान की तरफ नजर करना। भाई खुले मैदान में कहीं जो है मौका ऐसा आ गया, कहीं सफर में जा रहे हैं, कहीं जो है ऐसा इत्तेफाक हो गया कि बाहर जाना पड़ा। लेकिन आजकल जो माहौल है घरों के अंदर, हर घर के अंदर जो है टॉयलेट रहता है, बाथरूम रहता है, बैतुल खला रहता है। और आज तो और भी ज्यादा जो है तरक्की का जमाना है कि हर घर में बेडरूम रहते हैं, बेडरूम से अटैच रहता है। आदमी अपने कमरे से बाहर भी नहीं आने की जरूरत नहीं। आजकल इतना जो है हम नजाफत में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आदमी जो है जरूरत पूरी करे, तो ऐसा पूरी करे कि भाई किसी की नजरों में ना पड़े, किसी की नजर में ना आए। अब अगर बाहर जाने की जरूरत, यानी बाहर कहीं सफर में चले गए, अब जो है जरूरत महसूस हो रही है पेशाब की या पाखाने की, तो उसमें भी सुन्नत यही है कि आदमी आम रास्ते से इतने दूर चला जाए कि जिससे लोगों की नजर उसके ऊपर ना जाए। इतना दूर जाकर जो है अपना जो है जरूरत पूरा करना है, यही नबी की सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते के करीब या रास्ते पर कभी भी अपनी हाजत पूरी नहीं करते थे, बल्कि बहुत दूर चले जाते थे। आजकल जो चीज आम होती जा रही है कि भाई अपने घरों में, अपने कमरों में जो है बाथरूम है, और इसी तरीके से जो है बैतुल खला है, टॉयलेट है। तो ये बहुत अच्छी चीज है, नजाफत का और पाकी का एक अच्छा जो है ख्याल किया जा रहा है। लेकिन कहीं बाहर चले गए सफर में, तो उस वक्त हम अगर पेशाब की जरूरत हो गई या फिर जो है पाखाने की जरूरत हो गई, बाहर आम जो है खुले मैदान में जाना पड़ा, तो ऐसे वक्त में जरूरत पूरी करते वक्त, चाहे पेशाब हो चाहे पाखाना हो, यह हाजत पूरी करते वक्त आसमान की तरफ निगाह नहीं करना चाहिए। ये एक अदब की चीज है, ये मकरूह है। अब इसके बाद 10वीं चीज, बैतुल खला में बिला जरूरत देर तक बैठे रहना। चाहे टॉयलेट में हो, चाहे बाथरूम में हो, वॉशरूम में, कहीं भी हो, ज्यादा देर तक ऐसे जगह में ठहरना नहीं चाहिए। अभी मैंने कहा कि 2 वजहों से वसवसे ज्यादा आते हैं और आदमी जो है वसवसों का शिकार हो जाता है। ये भी है। एक चीज तो ऊपर गुजर गई कि बैतुल खला में जाकर जो है आदमी जो है बिला जरूरत आदमी जो है देर तक बैठ रहा है, तो ये चीज भी उसके लिए अच्छी चीज नहीं। अगर ये काम भी करेंगे तो फिर जो है हम वसवसों के शिकार हो जाएंगे। आजकल नौजवानों के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा पाई जा रही है। बहुत सारे नौजवान मुझसे खुद जो है राब्ते में हैं, और बहुत सारे नौजवानों को मैं कहता रहता हूं, बहुत सारे हमारे नौजवान हैं
अल्लाह उनको नेक तौफीक अता फरमाए, कि उनकी यही शिकायत है, वसवसे बहुत ज्यादा आते हैं। तो उनको मैं यही जो है उनसे गुजारिश करता हूं कि भाई जब बाथरूम में जाएं या जो है टॉयलेट में जाएं या वॉशरूम में जाएं, वहां देर तक ना रुकें। और बहुत सारे नौजवान क्या करते हैं, नौजवानी में हैं, अब जो है अपने आप को हैंडसम दिखाना है, तो इसलिए भाई वॉशरूम में चले गए या बाथरूम में चले गए, अब वहां जाकर अपने आप को संवार रहे हैं, चेहरा बना रहे हैं, बाल बना रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं और अच्छे अच्छे साबुन इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने जो है जिस्म को बनाने के लिए, अपने चेहरे को हैंडसम बनाने के लिए वहां जो है बहुत देर तक रुक रहे हैं। उसकी वजह से उसका असर जो है इबादतों के ऊपर पड़ रहा है। ये चेहरे की खूबसूरती थोड़ी दिन की है, आज नौजवानी है, चेहरे की खूबसूरती अच्छी रहती है, लेकिन उम्र जो है 30 साल पार कर गई तो फिर चेहरे के ऊपर झुर्रियां आ जाएंगी, झर्रियां आ जाएंगी चेहरे पर। और चेहरा अब जो है कितना भी आदमी जो है कोशिश कर ले, लेकिन उसका चेहरा वो चेहरा उस चेहरे के जैसा नहीं हो सकता जो चेहरा 20 साल के या 22 साल की उम्र में रहता है। तो इसके पीछे जो है पढ़ के अपने आप को जो है खूबसूरत दिखाने के लिए, अपने चेहरे को हैंडसम बनाने के लिए, अपने बालों को जो है बहुत ही अच्छा दिखाने के लिए वॉशरूम में बाथरूम में ज्यादा देर तक रुकेंगे तो फिर जो है वसवसों के शिकार हो जाएंगे। इबादतें हमारी मुकम्मल सही तरीके से नहीं हो सकती। तो इसलिए जितना काम है उतना काम कर लिए, वापस बाहर आ गए। बहुत जरूरी है, बहुत देर तक जो है बैतुल खला में हो या वॉशरूम में हो, बाथरूम में हो, नहीं बैठना चाहिए। अब इसके बाद 11वीं चीज, जारी या ठहरे हुए पानी में या किसी जानवर के सुराख या बिल में पेशाब या पाखाना करना, ये बड़ी खतरनाक चीज है और इंसान इससे जो है जिस्मानी एतबार से बीमारी का शिकार हो जाता है। कि भाई आदमी जो है जारी यानी जो बह रहा है पानी, उस पानी में पेशाब नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे, नौजवान और बड़े लोग भी इसके अंदर हैं कि गर्मियों का जमाना जब आता है, धूप ज्यादा होती है, तो तैरने के लिए जाते हैं, जाकर तैरते तैरते ही जो है पेशाब कर देते हैं उसमें। तो ये अच्छी चीज नहीं। पेशाब अगर तैर रहे हैं, तैरना के जो है अच्छी चीज है, अपने बदन को जो है अपने बदन की सेहत को बरकरार रखता है। वो तैराकी बदन की सेहत को बरकरार रखती है। लेकिन आदमी जो है पानी में तैर रहा है, तैरता तैरता पेशाब भी कर रहा है, ये जो है अच्छी चीज नहीं। पेशाब की जरूरत हो गई तो बाहर आ जाए, आकर जो है अपनी जरूरत पूरी करे, फिर जो है वापस चला जाए। तो ये बहुत जरूरी है। अब इसके बाद जारी पानी में यानी भागता हुआ पानी, उसमें जो है पेशाब नहीं करना चाहिए। और इसी तरीके से ठहरा हुआ पानी, बहुत सारी जगह जो है स्विमिंग पूल बनाते हैं और बहुत सारे नहर तालाब हैं इस पे पानी भागता नहीं है, बहुत सारा पानी जमा रहता है, उसमें भी जो है पेशाब नहीं करना चाहिए, पखाना नहीं करना चाहिए। अब इसके अलावा किसी जानवर के सुराख में, किसी जानवर के बिल में, चाहे वो सुराख चींटी का क्यों ना हो, चाहे वो सुराख जमीन पर रेंगने वाले जानवर का क्यों ना हो, कोई भी और हो, उस सुराख में और उस बिल में हरगिज हरगिज कभी भी पेशाब नहीं करना चाहिए। अगर पेशाब कर लिए तो इसका बहुत ही बुरा असर होता है। क्या होता है कि ऐसे बिलों में, ऐसे सुराखों में जिनों का बसेरा रहता है। और जब पेशाब कर लिए उन सुराखों में, उन बिलों में, तो उनको तकलीफ होती है, फौरन वो लोग जो है हमला कर देते हैं। तो इसलिए इससे बचने की जरूरत है। तो कहीं भी जो है किसी जानवर के सुराख में, किसी जानवर के बिल में पेशाब पखाना नहीं करना चाहिए। 12, नहर या कुएं या हौज के किनारे क़ज़ाए हाजत करना भी मकरूह है। तालाब के किनारे, नदी के किनारे और बड़ा हौज है उसके किनारे क़ज़ाए हाजत नहीं करना चाहिए, पेशाब हो पाखाना हो। बहुत दूर जाने की जरूरत है, दूर जाकर ही अपनी जरूरत पूरी करके वापस आए। 13, फलदार दरख्त के नीचे पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए। भाई फलदार दरख्त, ऐसा दरख्त जिससे फल निकलता है, कोई भी फल हो जिसको इंसान इस्तेमाल करता है, ऐसे दरख्त के नीचे पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए। क्यों? अदब का तकाजा है,
नहीं करना चाहिए। अब इसके बाद 14, जिस साए में लोग बैठते हो, चाहे वो साया घर का साया हो या फिर किसी दरख्त का झाड़ का साया हो या कोई और जो है जिसका साया हो, जिसके साये में लोग जो है थोड़ी देर के लिए आराम से बैठना चाहते हैं या बैठते हैं, तो ऐसे साये में हरगिज अपनी जरूरत पूरी नहीं करना चाहिए। अगर करेंगे तो लोगों को तकलीफ होगी, और इंसान को तकलीफ देना अच्छी चीज नहीं, शरीयत के अंदर बिल्कुल जायज नहीं। 15, आम रास्ते में क़ज़ाए हाजत करना, यह भी मकरूह है। यानी रास्ता जो जा रहा है, रास्ते के किनारे जो है बहुत सारे लोग जो है, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन अब भी कुछ मकामात पर इसके ऊपर अमल हो रहा है। छोटा रास्ता है, उसके किनारे ही लोग जो है अपने क़ज़ाए हाजत पूरी कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों को, अभी बहुत दिन का वाकया नहीं है, इशा की नमाज पढ़कर मैं घर जा रहा था तो दरमियान में एक जगह एक आदमी आराम से बैठकर अपनी जरूरत पूरी कर रहा है और खुले मैदान में, और उसके साथ ही साथ मोबाइल भी इस्तेमाल कर रहा है। तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन के अंदर का यह वाकया है। तो इसलिए आम रास्तों में जो है या रास्ते के किनारे पर पेशाब पाखाना नहीं करना चाहिए। इससे जो है लोगों को तकलीफ होती है, घिन आती है। और ये नहीं समझना चाहिए कि भाई हर आदमी हमारे जैसा रहता, नहीं, हर आदमी अपने जैसा नहीं रहता। कुछ लोग होते हैं बहुत ही जो है मुनज़्ज़ा तरीके से रहते हैं और नज़ाफत का बहुत ही ख्याल रहता है। उन लोगों की नजर जब इन लोगों पर पड़ती है तो वो लोग जो है नाराज हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इन चीजों से बचने की जरूरत है। 16, कब्रिस्तान में भी क़ज़ाए हाजत करना मना है। वो क़ज़ाए हाजत के लिए नहीं है, बल्कि वो लोग इंतकाल हो गए तो उनको दफन करने के लिए वो जगह, उस जगह में जाकर अगर हम जो है पेशाब कर रहे हैं, पाखाना कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। 17, मस्जिद या ईदगाह के करीब क़ज़ाए हाजत करना। मस्जिद या ईदगाह के करीब, तो या मस्जिद के अंदर जो पेशाब खाना है और तहारत खाने जो बने हुए हैं उसमें जाकर हम कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा दूसरी जगह नहीं कर सकते। उसके मस्जिद के करीब और ईदगाह के करीब भी नहीं कर सकते। तो इससे भी बचने की जरूरत है। और बहुत सारे जो है जगहों पर यही देखा जा रहा है कि ईदगाह जो हैं बने हुए रहते हैं, उन ईदगाहों में तहारत खाने का कोई इंतजाम नहीं रहता, इस्तिंजा खाने का कोई इंतजाम नहीं रहता। अब लोग जो है ईद के लिए जो है नमाज के लिए आते हैं, किसी को जरूरत हो गई तो थोड़ी दूर में जाकर आदमी जो है अपनी जरूरत पूरी करके आ जाता है। तो ऐसा करना मना है। जहां तक हो सके ईद के लिए जा रहे हैं, ईद की नमाज के लिए जा रहे हैं तो पूरा फारिग होकर जाना है। पहली बात, नहीं भाई मजबूरी है, पेशाब की जरूरत हो रही है, पाखाने की जरूरत हो रही है, तो फिर जो है ईदगाह से बहुत दूर जाना है, इतनी दूर जाना है कि लोगों की निगाह हम पर ना पड़े, इतनी दूर जाकर अपनी जरूरत पूरी करके आए। यह अदब का तकाजा है। 18, खड़े होकर, अब पहले बात आ गई, खड़े होकर बिला जरूरत पेशाब करना, यह भी अच्छी चीज नहीं। तो ये तमाम चीजें जो हैं बहुत ही, इन तमाम चीजों का ख्याल करने की जरूरत है कि इन चीजों में बहुत सारी चीजों के ऊपर आज जो है लोग बहुत ही बेबाकी से जो है इन चीजों के ऊपर जो है अमल कर रहे हैं और इसको जो है बुरा भी नहीं समझ रहे हैं। इसके बारे में जो है इनके दिल में बिल्कुल जो है इस चीज के ताल्लुक से बात भी पैदा नहीं हो रही है कि भाई ये चीज जो है बिल्कुल मना है, एक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो है ऐसे हालत आजकल हो रही है। तो इसलिए इस्तिंजा जो है आदमी की जिंदगी का बहुत इस्तिंजे से आदमी की जिंदगी का बहुत गहरा ताल्लुक रहता है और इंसानी जरूरत है, इंसानी तकाजा है। तो इसलिए जो है उसको जिस तरह हदीस के अंदर फरमाया गया उसी के मुताबिक हमको जो है उसको मुकम्मल करना है, पूरा करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम को जो है हमारा हर काम शरीयत के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर कोई मसला हो तो कमेंट के जरिए से आप पूछ सकते हैं
اور ہمارے چینل سے جو ہے جڑے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے فردوس مسجد کے اندر تفسیر قرآن پاک کی تفسیر ہوگی عشاء کی نماز کے بعد. تو ہر ساتھی جو ہے عشاء کی نماز کو فردوس مسجد پہنچنے کی کوشش کریں. فردوس مسجد میں عشاء کی نماز 8 بجے ہے. 8 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی. اس کے بعد سنت و نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد صرف آدھے گھنٹے کی مجلس رہے گی. ہر ساتھی جو ہے آنے کی فکر کرے, کوشش کرے, اور آتے آتے ہو سکے تو اپنے ساتھ 1-2 ساتھی کو ضرور لانے کی فکر کریں. میں جس طرح ہم آ رہے ہیں اسی طریقے سے ہمارا ایک ساتھی ہمارے ساتھ آ گیا تو ہمارا ثواب تو ہم کو ملے گا ہی, لیکن ہمارے کہنے پر وہ آدمی آ رہا ہے تو اس کا ثواب بھی اللہ ہمیں دیں گے, اور اس کا جو ثواب ہے اس میں کمی نہیں ہوگی. اس کا ثواب تو ملے گا, لیکن جتنا اس کو ثواب مل رہا ہے اتنا ثواب اللہ ہمیں اور زیادہ دیں گے. تو اس لیے ساتھی جو ہے اس کی فکر کریں. اور اسی طریقے سے پیر کے دن سے, اب جو پیر آ رہا ہے, کل جو ہے اتوار ہے, پرسوں جو پیر آ رہا ہے, پیر کے دن سے الحمدللہ درس بخاری شروع کی جا رہی ہے. بخاری شریف کا درس بھی ہوگا. تو ساتھی جو ہے یہ بھی جو ہے وقت عشاء کے بعد کا ہی ہے. عشاء کے بعد جو ہے عشاء کی نماز ہونے کے بعد سنت و نفلوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ جو ہے حدیث کی مجلس شروع ہوگی آدھے گھنٹے کے لیے. تو ہر ساتھی اس مجلس میں بھی جو ہے آنے کی کوشش کرے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.